Okay, good afternoon, everybody. So, we have completed quite a lot of material on the subject of faith. हमने बहुत सी बातों को पूरा किया बीते दिनों में विश्वास के विषय पर। So, yesterday we ended with chapter 9, Nurturing Your Faith. और हमने कल के दिन हमने उस अध्याय को समाप्त किया जो विश्वास का पोषण करना है। So, we learned how we have to build our faith, how we have to nurture our faith. कैसे हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं या पोषण कर सकते हैं। We saw we have to nurture our faith with the Word of God. हम परमेश्वर के वचन के द्वारा पोषण कर सकते हैं। We should learn to meditate on God's Word. और हम परमेश्वर के वचन को मनन करने के द्वारा। Then we have to nurture our faith by being part of a community, church community. और हम विश्वास को हम समुदाय के हिस्सा बनकर पोषण कर सकते हैं। And then we can also nurture our faith by listening to testimonies of faith. और हमने और दूसरा पॉइंट जो देखा, बिंदु देखा, विश्वास की गवाहियों के साथ अपने विश्वास का हम पोषण कर सकते हैं। So we'll move to chapter 10. अब हम अध्याय 10 में बढ़ेंगे। Now initially we talked about three kinds or three levels of faith. और हम विश्वास जो विश्वास है, मजबूत विश्वास के तीन आधार को हम देखने पाएंगे। Anyone know what are the three levels of faith? और विश्वास का तीन स्तर क्या है, आपको मालूम है? First is पहला, विश्वास का तीन स्तर क्या है? no faith, little faith, विश्वास Great नहीं, faith. छोटा विश्वास। थोड़ा okay, say that once more. एक बार और कहेंगे। Right? No faith, little faith, great faith. And all three was something that Jesus also, while he was ministering to people, he said to them in places, he said, where is your faith? जिस प्रकार यीशु मसीह के सेवकाई में देखते हैं, कई जगह यीशु मसीह ने पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Then he says, you of little faith. तुम्हारे पास थोड़ा विश्वास है। Then in another place he said, oh, you of great faith. और कई जगह यीशु मसीह ने कहा So- तुम्हारा बड़ा विश्वास है। In chapter 10, we're going to look at how to build our faith and come to that place of great faith or strong faith. हम अपने मजबूत विश्वास को किस रीति से बुनियादी सच्चाई पर हम आधार बना सकते हैं। Right? So we look at 5 truths from God's word. हम परमेश्वर के वचन से 5 बुनियादी सच्चाई को हम देखेंगे। And we look at 4 practices. What must we do to come to that level of great faith? और हम उसको प्रायोगिक तौर से देखेंगे कि कैसे उस विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं। Okay. Number 1, first point. पहला बिंदु, Be established in the integrity of God's word. हम परमेश्वर के वचन को खराई से दृढ़ होने पर। The word integrity is very important here. ये जो खराई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। So the word of God is something that God has put together. और परमेश्वर का वचन ये है कि एक साथ एक जगह को एकत्रित करता है। God's word is truth. परमेश्वर का वचन सत्य है। Right? The entire Bible is God's word. और पूरा जो बाइबल है परमेश्वर का वचन है। Let's read John 17:17. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 17 पद को देखेंगे। Yeah. Let's also read that in Hindi. हिंदी में पढ़िए। Yeah. Sanctify them by your truth. Your word is truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि वचन सत्य है। So, number 1, first thing, for us to go to a place, to reach that place of great faith, we must read God's word. But even as we read, we must establish in our heart. That means we must tell our heart, our spirit, we must be convinced that God's word is truth. अगर उस महान विश्वास में, उस ऊंचाई में अगर आप पहुंचना चाहते, बढ़ना चाहते, इस बात को जानना है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। God's word stands. परमेश्वर का वचन स्थिर रहता है, मजबूत रहता है। And God is waiting to perform his word. परमेश्वर इस बात का इंतजार करता है कि उसके कार्य को सही रीते सिद्धपूर्ण से कर सके। Okay, listen to this.
Everything in the natural world हम जो कुछ संसार में देखते हैं वो सब प्राकृतिक है, is subject to the word of God. That means the word of God controls everything in the world. इस संसार में हम उन बातों को देखते हैं जो परमेश्वर का वचन सब बातों को काबू करता है। Right? Many things in this world will change. इस संसार में देखते हैं कि बहुत सी चीज बदलती है। There will be many changes that we've already seen. Even in the future, we will see many changes. और हमने पिछले समय में बहुत सी बातों को बदलते हुए देखा है, भविष्य में भी बहुत सी बातों को हम बदलते हुए देखने पाएंगे। But God's word will never change. लेकिन परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं। God's word is truth. परमेश्वर का वचन सत्य है। God's word is eternal. परमेश्वर का वचन अनंतकालीन है। So faith, strong faith is based on God's word. अगर मजबूत जो विश्वास है परमेश्वर के सत्य वचन पर आधारित है। Second one, दूसरी बात, be established in Christ's finished work on the cross. क्रूस पर मसीह द्वारा पूर्ण किए गए कार्य में दृढ़ होना। Now all of us are believers. Why? हम सब विश्वासी है। क्यों? Because Jesus died on the cross क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर मरा and he took away our sins. और हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया। And so when we believe in Jesus, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, we are believing in the cross. हम क्रूस पर विश्वास करते हैं We are believing in the price that he paid. और हम जो उसने दाम चुकाया उस पर हम विश्वास करते हैं। So we share in the finished work of the cross. क्योंकि हम उस क्रूस पर पूर्ण की जो बात यीशु ने पूरा किया उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। So in the natural, the cross looks like a defeat. और हम साधारण तौर से देखें क्रूस कुछ भी है ही नहीं। No, it's like a defeat. It's और defeated. वो त्यागा हुआ है, क्रूस त्यागा हुआ है। So that, even the disciples thought, what kind of death is this? और चेले भी पूछने लगे ये कौन सी मृत्यु है। It's a सोचा defeat. उन्हें। It's a defeat. वो तिरस्कृत किया हुआ। But in the spiritual realm, और जब आत्मिक जो बच्चे हैं, no, in the spiritual realm, आत्मिक क्षेत्र में Jesus यीशु मसीह defeated the devil. यीशु मसीह ने शैतान को पराजित किया। Right? On the cross, Jesus said, "It is finished." और इसलिए यीशु ने क्रूस पे कहा ये पूरा हुआ। In the Greek, the word is tetelestai. जो ग्रीक वर्ड्स को पास्टर जी ने शेयर कर दिया। Tetelestai, which means it's इसका मतलब completed. इसका मतलब ये है पूरा हुआ। Nothing more to be done. अब उसके लिए कुछ काम बाकी नहीं है। So every curse that Adam put us under, आदम के अधीन में जितना उस श्राप को जो लिया था। right? Now, for example, a child, a 5-year-old child, उदाहरण के लिए एक 5 साल का बच्चा, we don't have to teach the child how to lie. उसको सिखाने की जरूरत नहीं कि झूठ कैसे बोलना है। The child learns automatically. वो बच्चा आसानी से सीख जाता है। Why? क्यों? Because there's a sin nature already in the child. और वो पाप रूपी जो काम है वो उसके बच्चे के शरीर में पाया जाता है। But the moment we believe in Jesus, जब वो क्षण होता है यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं, that sin nature is destroyed. और वो जो पाप का जो लक्षण है वो वहां खत्म हो जाता है। So everything that Adam brought us under, और सब कुछ आदम में होकर Jesus delivered us from that through the cross. और यीशु मसीह ने क्रूस पर उस काम को छुटकारे के रूप में हमें दिया। What happened in the cross? क्रूस पर क्या हुआ? Our sins are forgiven. हमारे पाप क्षमा किए गए। The power of sin is broken. पाप की सामर्थ तोड़ी गई। We are a new person, spirit, soul and body. और हम नए व्यक्ति हो गए, आत्मा, प्राण और शरीर में स्वस्थ हो गए। Right? Then the curse has been removed from our lives. हमारे जीवनों से श्राप हटा दिया गया। And the blessings of God is being released upon our lives. और आशीष हमारे ऊपर जारी की गई। After the cross, the power of the cross is every satanic, demonic spirit has been destroyed and defeated. और शैतान और दुष्ट की शक्तियां भी निष्क्रिय कर दी गई
और नाश कर दी गई। We are redeemed हम छुड़ाए गए and we are brought into God's own family. और हमें परमेश्वर के अपने परिवार में, परमेश्वर ने अपने राज्य में लाया है। What is the meaning of being redeemed? तो छुटकारे का मतलब क्या है? हमें word छुड़ाए re- का मतलब क्या है? The word redeem means to pay back a ransom or pay back something to get back what belongs to you. और जो कुछ हमने हमने हमसे हमारे हाथ से चला गया, वो चीज दाम देकर उसे वापस ले लिया गया। That's what Jesus did on the cross. यीशु ने ये क्रूस पर काम किया। Jesus paid the price for sin. यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए दाम चुकाया। He was beaten and bruised on the cross for our sin. और हमारे पापों के लिए वो मारा गया, उसको मार पड़ी। Now when we believe in Jesus, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, we are redeemed. हम छुड़ाए जाते हैं। Who paid the price? दाम किसने चुकाया? Jesus paid the price. यीशु मसीह ने। Right? And we are redeemed from what? हम किस बातों के लिए छुड़ाए गए? Everything that the enemy has trying to put control over us. और जिस शैतान जो हमारे ऊपर जिस पूरा अधिकार को जो उसने रखा था हमारे ऊपर, We've been redeemed from that. उसके द्वारा शैतान के हर एक काम हमारे ऊपर थे, उसके द्वारा हम छुड़ाए गए। And now he's saying, not only have I redeemed you, मैंने छुड़ाया ही नहीं बल्कि but I've brought you into my own family. और मैंने तुम्हें अपने परिवार में जोड़ दिया। You are part of my kingdom. अब मेरे राज्य के तुम हो गए। That's so powerful. ये कितना सामर्थ्य शब्द है। So when you and I look into the mirror, जब हम उस मिरर में या उस दर्पण में देखते हैं अपने आप को, first thing that we must think is, hey, I am a child, I'm a son, I'm a daughter of God. और जब दर्पण में अपने आप को देखते हैं, और ये सबसे पहले इस कहना है कि मैं परमेश्वर का संतान, बेटा बेटी हूं करके। People may not, appreciate us. हो सकता है लोग हमारा सम्मान नहीं करें, There are people who will persecute us. लोग हमें सताएंगे, People may say bad things to us. और लोग हमारे बारे में बुरी बुरी बातों को कहेंगे, Or I myself may have a bad image about myself. और हो सकता है हमारे लोग के सामने हमारे दूसरे के सामने एक हमारा व्यवहार गलत होगा। But we are to be established in this truth और ये सत्य को हमें खड़ा करना है तो that I'm part of God's family. तब कहना है कि मैं परमेश्वर का परिवार का हूँ, I'm a child of God. मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ। Nothing can change that. वो कुछ बदल नहीं सकती। Nobody can take away that from you. मैं आपके अंदर से कोई भी उसको निकाल नहीं सकता। Nobody can take your inheritance away from you. और आपके जीवन में जो आपने प्राप्त किया वो आपके जीवन से कोई निकाल नहीं सकता, चुरा नहीं The सकता। devil can't come and say, no, you don't believe in God. शैतान आके आपसे इस प्रकार कहेगा कि नहीं, तुम परमेश्वर पर विश्वास ना करो। Or he may say, you are not a child of God. वो आपसे कहेगा कि आप परमेश्वर के संतान नहीं है करके। But the truth is, लेकिन जो सत्य है, we are in God's family. हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। Each one of us has been qualified. हम प्रत्येक जन हमने योग्यताओं को पाया है To share in his inheritance. उसके उस राज्य के बारे में कहने के लिए। To go to heaven. I mean, that's our place. वो हम स्वर्ग हमारा जगह है। Now, let me give you an example. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। Imagine there's this village. उदाहरण के लिए एक दृश्य हम देखें, एक गांव का, Very interior village. बहुत ही दूर दराज गांव। And there's one simple old man. वहां पर एक साधारण बुजुर्ग व्यक्ति, Now he becomes a believer. वो एक विश्वासी, Right? He believes in Jesus. वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। And then in the city, और शहर में there's a big businessman. एक बड़ा व्यवसायी धंधा करने वाला, He's a very well-known businessman. The whole world knows him. उस व्यक्ति को सारे संसार के लोग जानते हैं वो कितना धनाढ्य है करके। Right? And he also believes in Jesus. वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है। Now, in God's eyes, this big businessman and this person, this man in the village, are the same. परमेश्वर की दृष्टि में एक गांव में रहने वाला बुजुर्ग विश्वासी और एक शहर में रहने वाला विश्वासी
एक समान है। Why? क्यों? Because they are qualified not because of their work or the work that they are doing in their life, वो उनकी कामों के कारण, उनकी जो योग्यता है उनके कामों के कारण नहीं, they are qualified because of the cross of Jesus Christ. बल्कि यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान के द्वारा उन्होंने वो इस योग्यता को प्राप्त किया। Read Colossians chapter 1 verse पढ़ेंगे 12, 13 and 14. कुलुस्सी की पत्री उसका 1 अध्याय 12 से 14। Verse 13 says, He delivered us from the power of darkness. 13 में लिखा, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। He delivered us and put us into the kingdom of light. उसने छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में, पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। And because of His blood, उसके लहू के कारण, लहू बहाए जाने के कारण we have forgiveness of sins. हमारे पापों से हमने क्षमा प्राप्त की है। This point is very important for us. ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के We लिए must be established, know what Jesus did on the cross. कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया, Declare it over our life. हमारे जीवन से हम घोषणा करें। Every Sundays when you are taking communion, जब आप रविवार के दिन कलीसिया में प्रभु भोज जब लेते हैं, you're remembering the cross आप उस क्रूस को याद करते हैं and you're declaring the power of the cross upon your life. और आप अपने जीवन के अंदर उस क्रूस की सामर्थ की घोषणा करते हैं। What happens when we declare in faith and receive the communion? जब आप विश्वास की घोषणा करते हैं तो उस प्रभु भोज में हम क्या प्राप्त करते हैं? We receive faith. हम विश्वास को प्राप्त करते हैं। We grow in faith. विश्वास में हम बढ़ोतरी को पाते हैं। Third point, तीसरा बिंदु, be established in our identity in Christ. मसीह में हमारी पहचान में दृढ़ होना है। This is a very common verse and I think all of us must know this by heart. और ये वचन को अधिकांश लोग जानते हैं और आपको याद भी होगा। Anyone knows this verse? 2 Corinthians 5:17. मालूम है? 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद। Okay. Okay, this is a Hindi and English mixed version. Okay, very nice. So everyone know this verse. If anyone is in Christ, यदि कोई मसीह में है, he is a new creation. वो नई सृष्टि है। All things have gone पुरानी बातें बीत गई and all things become new. देखो सब बातें नई होगी। The moment a person becomes a believer in Jesus, जब यीशु मसीह में, उसी क्षण जब वो विश्वास करता है यीशु मसीह पर, their identity is changed. उसकी पहचान बदल जाती है। Physically, they may look the same. हो सकता है शारीरिक तौर से वो एक जैसा दिखाई दे रहा हो। Sometimes they may also be thinking the things, worldly things, because the mind is not yet renewed. हो सकता है उसका संसार की बातों को सोच रहा है, उसका मन बदला नहीं हो, But their identity, who they are, has changed completely. लेकिन उसकी पहचान जो है वो पूरी तरह से बदल गया। So it is not about, okay, I'm a businessman, I'm a pastor, all of that is good. हाँ, पास्टर है और व्यवसाय करने वाला, कोई भी नौकरी करने वाला, वो सब अच्छी बात है। I'm prophet, evangelist, all of those are good, we need them. और भविष्यवक्ता और सुसमाचार प्रचारक ये होना बहुत जरूरी, अच्छी बात है। Worship leader, songwriter, गीत को लिखने वाला, आराधना करने वाला, all of this is good. We need people in the ministry. ये सेवकाई में इन लोगों की हमें आवश्यकता है। But our true identity is who we are in Christ Jesus. लेकिन सच्ची पहचान जो वो है कि हम मसीह में कौन है। That's our true identity. वो सत्य पहचान, सच्ची पहचान। So for example, whether a person is preaching or not preaching, his identity is the same. अगर वो प्रचार कर रहा है और नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी पहचान एक ही है। Our identity must not be placed on our skills and abilities. हमारी पहचान वो हमारे कौशलता के अनुसार नहीं है।
or our identity must not be placed on our titles. और हमारे जो 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 टाइटल है, जो नाम नाम जिस प्रकार होता है उस प्रकार नहीं है। Because titles will come and go, हाँ, आपके आपके अंदर जो पद वेरे वो आता जाता रहेगा, but your identity in Christ will never change. लेकिन पहचान मसीह यीशु में कभी भी बदलेगी नहीं। I read a very nice article couple of years back. कुछ वर्ष पूर्व में एक मैंने एक शीर्षक को पढ़ा था। There was a president of United States of America many America- years ago. कई वर्ष पूर्व यूएस अमेरिका का एक जो राष्ट्रपति थे, He was there as president for 4 years, one term. और एक बार 4 साल उन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया। And he was known as the president. Everyone spoke about him. Wherever he went, there were people. जहां कहीं वो जाते हैं लोग उसको जानते हैं और उसका नाम था। You're seeing him in the news, वो उसे समाचार पत्रों में देखते हैं, right? And everyone know, okay, he's the greatest, one of the greatest man living in the world was the president of United States. हाँ, ये सब लोग को मालूम था कि वो एक राष्ट्रपति है, वो जीवन को जीता है। But after 4 years, लेकिन 4 साल के बाद he had to move out of that president's house. और वो जो 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 राष्ट्रपति भवन से वो बाहर जब निकल जाता है, And after that, nobody bothered about him कोई भी व्यक्ति उसके बारे में सोचता नहीं है, because he's not president anymore. क्योंकि अब यहाँ पर वो राष्ट्रपति नहीं है। Nobody is looking at him. कोई उसको देख नहीं रहा है, Nobody is calling him for news. और समाचारों में उसका नाम कहीं नहीं आ रहा। He's alone in his house. अब वो अपने घर में अकेला है। And he writes this article. He says, I felt like committing suicide. और उसने अपने शीर्षक में उस पत्र में लिखा कि मैं ऐसा लग रहा है कि मुझे आत्महत्या करना चाहिए। What was the problem here? यहाँ पर समस्या क्या है? His identity was placed on the word president. और देखते हैं कि उसकी जो पहचान थी राष्ट्रपति के रूप में पूरे संसार में थी, But our identity is based on Christ लेकिन Jesus. हमारी पहचान मसीह यीशु में है। So there's a book called Who We Are in Christ, APC publication. एबीसी पब्लिकेशन में एक पुस्तक है, हम मसीह में कौन है करके। It's a very thin book, but it's very important. If you have time, you can take it and read और it. आपके समय में ले वो पुस्तक को ले और पढ़े। Everyone understand? आप Yes. सबको समझ में आ गया? Okay. So now, people may say you're not this, you're not good, you're bad, you've done this. All of that will be there. आपको लोग कहेंगे आप बेकार है, आप ऐसा है, सही नहीं है, गलत है, बहुत सी बातें बोलेंगे। What must you say? तो हमें क्या करना है, क्या कहना है? What will you say? आपको क्या कहना है? अगर आपको कोई बुरा बोलता है, बेकार बोलता है, कुछ काम के नहीं बोलते, तो आपको क्या बोलना है? I am a new creation, okay? I'm a child of God. मैं परमेश्वर का संतान हूँ। My identity is not in what I'm doing. मेरी पहचान वो नहीं कि मैं जो क्या कर रहा हूँ, My identity is in Christ. मेरी पहचान मसीह यीशु में है। Next point. अगला बिंदु, Be established in the reality of the presence and the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ की वास्तविकता में दृढ़ होना। So yesterday we talked a little bit about the Holy Spirit as well. हमने Gifts of the Spirit. हमने कल के पिछले दिन में हमने पवित्र आत्मा के बारे में हमने सीखा, देखा। The presence and the power of the Holy Spirit is real. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति ये सच्चाई है। And you'll learn more in the topic on the Holy Spirit. और आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। John 7:38. यूहन्ना रचित सुसमाचार का 7 अध्याय 38 पद Read. पढ़िए। Yes. Can you read that in Hindi as well, please? हिंदी में पढ़िए। Here Jesus is saying, those who believe in me, यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे जो कोई मेरे out पर of विश्वास करता है out of his heart उसके हृदय में से will flow rivers of living water. जीवन की जल की नदियां बह Now, निकलेगी। the water here is referring to the Holy Spirit. यहाँ पर जो पानी है पवित्र आत्मा को दर्शा रही है। The Holy Spirit indwells and empowers each one of us. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और प्रत्येक के जीवन में कार्य भी करता है। The moment we became believers, the Holy Spirit came into us. जब क्षण में हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर,
उसी क्षण पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, and He's dwelling in us. हमारे अंदर वास करता है। And then as we begin to, maybe continue our work or ministry, हम जब हमारे कार्य को करते हैं लगातार और सेवकाई को भी करते हैं, He anoints us and empowers us to fulfill the call of God on our life. परमेश्वर के उस बुलाहट के अनुसार वो हमें क्या करता है, अभिषेक करता है उसके काम को करने के लिए। Right? The enemy is going to throw, yesterday we learned, right? Fiery darts. The enemy is going to throw attacks upon us. जिस पर देखते हैं, हमने कल देखा कि शैतान किस प्रकार हम पर प्रहार करता है, तीरों के द्वारा, जलते हुए तीरों के द्वारा। But the Bible says He will raise a standard. और हम परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, उस स्थान में हमें खड़ा करता है। The Holy Spirit will raise a standard against the enemy. और पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है शत्रु के विरुद्ध में खड़े होने के लिए। What is the word standard? वो The word standard means a wall, like a wall. और परमेश्वर का हम देखते हैं वचन का जो खड़ा होने का मतलब है एक दीवार के समान। So sometimes we are standing and the enemy is attacking us from every side. और जब हम एक जगह खड़े होते हैं, हम देखते हैं कि शत्रु हम पर प्रहार करता है हमें गिराने के लिए। All we have to do is say, Holy Spirit, अब तब हम कहते हैं, पवित्र आत्मा, I know you're inside me. मैं जानता हूं कि आप मेरे अंदर हैं। Release your power. आपके सामर्थ को प्रकट करिए, Release your anointing. आपके अभिषेक को प्रकट करिए। And then we can declare this verse. और हम इस वचन की घोषणा करते हैं, When the enemy comes like a flood, जब जो शत्रु उस बाढ़ की तरह हमारे सामने आता है, the Spirit of the Lord will raise a standard. और पवित्र आत्मा वो दीवार के समान हमारे सम्मुख खड़े हो जाता है। Amen? आमीन। Right? So the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit breaks the yoke of the devil upon our life. और देखते हैं, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, शत्रु की जितनी भी चालें हैं, जो उसका जो भी जो जुआ है, वो तोड़ दिया जाता है। The enemy will try to put us in a burden, put a yoke on us. और हम क्या करते हैं कि परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का जो लहू हमारे उस जीवन के अंदर प्रवेश हो जाता है। No. The enemy can put a yoke or a burden upon us. और Burden. और जो जुआ है, जो शैतान क्या करता है, अपने उस भारी जो जुआ है उसको हमारे ऊपर लाद देता है। And that burden can become heavy and become an oppression. और वो जो बोझ है इतना भारी होता है जिसमें हम दब जाते हैं। The Bible says the anointing of the Holy Spirit will break that burden. परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा का उस अभिषेक के द्वारा वो सारे जो जुआ है, सारे जो बोझ है, उसको तोड़ दिया जाता है। So what is our responsibility? हमारी जिम्मेदारी क्या है? Be confident. हमें क्या करना है? सावधान रहना है। Be confident हमें सामर्थी होना है, बलवान होना है, that the Holy Spirit कि पवित्र आत्मा will enable us हमें योग्य बनाए, to be bold and strong in faith. हम अपने विश्वास में दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए और बलवान हो जाए। Remember, ध्यान दे, the Bible says, greater is he that is inside you than he that is in the world. तुम्हारे अंदर जो है वो संसार से बड़ा है। So you must be established. That means you should know this. हम अपने आप को स्थिर करें और आप उसको जानने का प्रयास करें। Especially when we have the challenging times, the difficult times. जब खास तौर से चुनौती के समय और परीक्षाओं के समय, Right? So when everything is going well, जब सब कुछ हमारे लिए अच्छा होता है, चल रहा होता है, then no need, no? हमें कोई जरूरत नहीं, No battle to fight. It's easy to walk. हमें लड़ने की जरूरत नहीं, वहां पर युद्ध के मैदान में जाने की जरूरत नहीं, आसानी से चलता है। But when the battle comes, जब युद्ध के मैदान में होते हैं, लड़ाई आती है, there's a true test of faith. और तब हमारे सत्य की जो हमारे अंदर जो विश्वास है उसकी परीक्षा होती है। Next point, very important. और अगला जो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, Be established in the authority of the name of Jesus. यीशु के नाम के अधिकार में दृढ़ होना है। Mark chapter 16, 17 and 18. मरकुस 16 अध्याय उसका 17 और 18 पद। Read that please. पढ़े इस वचन को।
Yeah. It says here, these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons, they will speak in new tongues, they will heal the sick, everything. विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाओं को बोलेंगे. The key here is in my name, that means in Jesus' name. यहाँ पर जो कुंजी है वो है यीशु का नाम. In the name of Jesus. यीशु का नाम. Now, this is not a formula, ये केवल एक फार्मूला नहीं है, but this is a knowing inside. और हमारे अंदर जानना. We must know the power of the name of Jesus. और हमें ये जानना है यीशु के नाम में सामर्थ है. Now, if you use it as a formula, अगर हम फार्मूला के अनुसार लेंगे तो sometimes we won't know, we will not see God's work in our life. कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस कार्य को देख नहीं पाते. Right? So we must really know the word, the name of Jesus, और what authority it holds. हमें सही रीति से परमेश्वर के वचन को जानना है कि यीशु के नाम में क्या अधिकार I'll है. give you an example from the Bible. मैं बाइबल से एक उदाहरण दूंगा आपको. Peter and John, पतरस और यूहन्ना, after Jesus had rose again from the dead. और यीशु के जी उठने के पश्चात, I think this is in Acts 3. प्रेरितों काम की पुस्तक उसका Now, तीन अध्याय. now Jesus has resurrected, he has gone to heaven, और यीशु मसीह जी उठा और स्वर्गारोहण हो गया इसका. and the Acts chapter 2, the Holy Spirit has come upon all 120 of them, all the और disciples. देखते हैं कि दूसरा अध्याय में प्रेरितों का काम 120 लोग जब इंतजार करते, प्रार्थना करते, पवित्र Now- आत्मा उनके ऊपर आया. Peter and John are going to the temple to pray. और पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर प्रार्थना के लिए आराधना के लिए जा रहे थे. And there was a lame man sitting there. और वहां पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था. Now, that lame man would have been sitting there for many years, maybe. वो लंगड़ा जो भिखारी कई वर्षों से वहां पर बैठा होगा. Every time he's sitting there, he would have seen people coming and going. वो वहां पर हमेशा वहां बैठता है तो लोग आते जाते देखते हैं. Maybe Peter and John also have seen him कई बार many पीटर, times sitting there. कई बार पतरस और यूहन्ना ने भी उसको वहां बैठे हुए But देखा this होगा. time, there was something different. लेकिन इस समय एक बदलाव को हम देख सकते हैं, एक परिवर्तन को देख सकते हैं. Peter goes straight to that lame man. और सीधा पतरस उस लंगड़े भिखारी के पास जाता है. He says, silver and gold I don't have, और वो कहता है कि मेरे पास ना सोना और चांदी है, but in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. और यीशु नासरी मेरे पास जो है, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल. You understand the difference here? आप समझ गए ये दोनों अंतर को? These two are fishermen. ये दोनों मछुआरे थे. Peter is a fisherman. John was probably helping during that time. और पतरस तो मछुआर था, लेकिन उस समय के दौरान हम देखते हैं कि यूहन्ना भी मदद करता था. They are not, Pharisees or, preachers in the temple. और वो फारिसी लोग नहीं थे जो मंदिरों में संदेश को देते थे या प्रवचन करते थे. What did Peter say? पतरस ने क्या कहा? In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. यीशु नासरी के नाम से उठ और चल. And that lame man stood up. और वो लंगड़ा खड़ा हो गया. So it was not a formula, वहां पर एक फार्मूला नहीं था, but Peter knew the authority of the name of Jesus. पतरस जानता था यीशु के नाम का अधिकार, उस अधिकार को जानता था. I'll give you another example. मैं दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं. Let me just check that. Okay, Acts chapter 19. प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 19 अध्याय. Now, Acts chapter 19, Paul is in a place called Ephesus. और पौलुस एफेसस में था. And Paul has become, everyone know the apostle Paul. He is preaching, he is healing people. और पौलुस भी देखते हैं कि लोगों को चंगाई करता था, प्रचार करता था, संदेश देता था यीशु का. Okay, let's read Acts 19 verse 15 to 16. 15 से 15 and 16. 15 और 16 पद को पढ़े. 19 Read अध्याय it in Hindi. हिंदी में पढ़े.
Yeah. Now, what is the difference? Now, the sons of Sceva, who was a priest, और यहाँ पर हम देखते हैं कि sons of a chief priest, और वो वहां पर एक जो मुख्य अधिकारी वो था, they saw one demon possessed person, और वो उस याजक व्यक्ति ने एक दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति को वहां पर देखा, and they said, in the name of Jesus, who Paul preaches, और मैं उसने कहा कि यीशु के नाम से जो पौलुस जो प्रचार करता है, यीशु का नाम come का, out of this person. इसके जीवन से बाहर निकला। But the demon responded, लेकिन यहाँ पर देखते हैं उसमें ये दुष्टात्मा से भरा व्यक्ति ने क्या क्या प्रत्युत्तर दिया, Jesus I know, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, Apostle Paul also I know, पौलुस को भी मैं जानता हूँ, but who are you? तुम कौन हो? What is the meaning of this? इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? They did not have a relationship with Jesus. They did not know Jesus. ये लोग जो थे, ये लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, यीशु मसीह के साथ कोई इनका रिश्ता और वास्ता नहीं था। They were trying to use the name of Jesus like a formula. केवल वो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे यीशु का नाम का, उन्होंने सोचा हो जाएगा करके, It did not work. लेकिन वो काम नहीं किया फार्मूला। So really, we must be established to know that the name of Jesus has authority. हम अपने जीवन में यीशु के नाम को स्थापित करें, So we can use the name of Jesus. ताकि हम यीशु का नाम को इस्तेमाल करने पाए। Here he says, in my name, और यहाँ कहता है मेरे नाम से, my name, all of these things will happen. और मेरे नाम से ये सब कुछ हो सकता है। You will take up serpents, you can drink anything तुम deadly. सांपों को उठा लेंगे, You will lay hands on the sick and they will recover. तुम प्राणनाशक वस्तु पी भी लेंगे, और तुम बीमारों पर हाथों को रखेंगे, चंगाई को पाएंगे। Now, using the name of Jesus, यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल करना, using the authority of his name, उसके नाम के अधिकार को इस्तेमाल करना, by faith we can boldly pray for healing and deliverance. और हम विश्वास के द्वारा मजबूती बलवान होकर हम बीमारों को चंगा कर सकते हैं। We can pray over our lives. हम अपने जीवन के लिए भी प्रार्थना कर We can सकते pray हैं, for others. दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते And we हैं। can expect healing because we are not the healer. हम लोग हम चंगाई को देखते हैं, लेकिन हम चंगा करने वाला व्यक्ति नहीं है। But we can expect God to bring healing और because of the name of हम ये Jesus. विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर यीशु चंगाई को देगा। Amen. आमीन। There are plenty of testimonies and stories of the power of the name of Jesus. और बहुत सारी कहानियां और जो गवाहियां यीशु मसीह के नाम से देखते अद्भुत काम हुए। Just that name is enough. उसका नाम केवल काफी है। The name, if you say Jesus, all of hell will shake. और आप यीशु का नाम लेते हैं, पूरी जो अंधरों की शक्तियां हिलाई जाती है। All demons will fear and tremble at the name of हर Jesus. यीशु के नाम से हर दुष्ट आत्मा की शक्तियां, शैतान भी कांपता है। The moment we know the power of that name, जब हम क्षण यीशु के उस सामर्थ्य नाम को जानते हैं, we can walk in a greater anointing. और हम बड़े उस अभिषेक में हम बढ़ सकते हैं। Right? So these are the 5 points. ये 5 बातें हमने देखा। Now let us look at 4 points on how to develop strong faith. और हम अब देखें How to develop strong faith. हम कैसे हम विश्वास को, दृढ़ विश्वास को विकसित करने पाते हैं। We've spoken about this a little bit in each chapter. और हमने थोड़ा थोड़ा इन बातों को हमने वचनों से हमने देखा है। Number 1, always declare God's word. सबसे पहले हम कैसे दृढ़ विश्वास को विकसित करने वाली आदतों को बना सकते हैं। पहला, हमेशा परमेश्वर के वचन को घोषित करने के द्वारा। See, here's the important key. ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है। What I know, I can declare. जो मैं जानता हूं उसकी घोषणा करना। If I don't know, how will I declare? अगर मैं नहीं जानता, मैं क्या घोषणा करूंगा? So for me to know, I have to read the word. और मुझे अगर जानना है तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। I have to memorize scripture. परमेश्वर के वचन को मुझे याद करना होगा। I have to meditate on scripture. परमेश्वर के वचन का मुझे मनन करना होगा। So every time there's a challenge or a difficulty, और हर समय मेरे सामने चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं। so the Holy Spirit will remind us of the verse that we can declare. और उसी समय पवित्र आत्मा याद दिलाता है वचन को, ताकि हम घोषणा कर सके। I'll share this small incident that happened when
maybe in my early 20s. और मैं उन बातों को याद करता हूँ जब मैं जब 20 साल का जब था, मेरे साथ घटित हुई। After finishing work, काम करने के बाद I was going to one person's house for prayer in the और मैं evening. एक व्यक्ति के घर प्रार्थना के लिए जा रहा था काम के They बाद, asked me to share one word. और उन्होंने कहा कि ए वचन से एक बात को बोले। Small house prayer. और वो छोटा सा घर और एक घरेलू संगति। So I prepared a message on God's love, God's faithfulness. और परमेश्वर के प्रेम और उसके विश्वास योग्यता के बारे में संदेश को तैयार किया। But that morning, I kept getting this verse. I have given you authority over snakes and scorpions. तब मेरे अंदर उस समय वचन स्मरण आया, याद दिलाया कि तुम्हें वो अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को कुचलने के लिए। Kept getting, the Holy Spirit is reminding me of that verse the whole day. पवित्र आत्मा मुझे बार बार वो दिन भर मुझे बार बार याद को दिलाता गया। So I finished work, I came back home. और जब मैं अपने काम को किया और वापस घर आया, I went for the prayer. मैं प्रार्थना के लिए गया। Now, this is a small house. छोटा सा घर था, They put a chair वहाँ चेयर कुर्सी थी, and they asked me to sit there, and everyone was sitting down and they were singing praise and worship was और going on. बाकी लोग सब नीचे बैठे थे। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया और बाकी लोग गीतों को गा रहे थे। And as the worship was getting over, जब गीत गाना आराधना वहां पर जब खत्म हुआ, suddenly one of the believers came up to me. अचानक वहां से एक विश्वासी भाई मेरे पास आया। He said, Pastor, just move little. उन्होंने कहा कि पास्टर थोड़ा जगह बनाइए, हट जाइए। So I moved, मैं थोड़ा सा वहां से हटा and he moved the chair. और उसने कुर्सी हटा दिया। The moment he moved the chair, there was a 7 or 8 feet cobra which just stood up straight. और जैसे ही वो कुर्सी हटाया, लगभग 7 फीट का जो कोबरा खड़ा हो गया मेरे सामने। So sitting under me the whole time. हाँ, जब मैं जिस कुर्सी बैठा था वो कुर्सी के नीचे था वो। Suddenly I got afraid. और जैसे ही खड़ा हो गया मैं डर गया। But the whole day one verse was in my mind. लेकिन वो पूरा दिन परमेश्वर का वचन मेरे मन में चल रहा था। I have given you authority मैंने तुझे अधिकार दिया है over snakes and सांपों के scorpions. ऊपर। Now, the moment I saw that snake, I got afraid. और जैसे ही वो क्षण मैंने उसको देखा और मैं डर गया। We immediately, the children and the women and children, everyone were rushed out. और वापस उसी क्षण में सब लोग वहां से उठ के वहां से बाहर निकले। But there was such a boldness in me. I was not afraid at all of that snake. और उस समय मेरे अंदर इतना क्या बोलते हैं, एक सामर्थ्य है, मजबूत बल, मेरे अंदर एक शक्ति आई। Now I don't go to catch it. मैंने उसको पकड़ा तो नहीं, But I was not afraid at all. उस समय मेरे अंदर डर चला गया मेरे अंदर से। There was no fear. उस समय कोई डर नहीं मेरे अंदर। Because I was just, that word was so strong in my mind. मेरे मन में परमेश्वर का वचन बड़ा मजबूती से काम कर रहा We था। called the snake catchers. They came, took the snake and went. और सांप पकड़ने वाले को बुलाया और उसने लेके गया। So sermon is changed. और यहाँ पर संदेश मेरा बदल गया। God has given you authority over snakes and scorpions. परमेश्वर ने अधिकार दिया है तुम्हें सांपों को उठाने के लिए। What you have, the Holy Spirit will remind you. आपके अंदर क्या है, पवित्र आत्मा उसको याद दिलाता है। So fill your spirit with God's word. परमेश्वर के वचन को हमारे आत्मा से भर ले। Sometimes we may be in a situation and say, God, I don't know what to do. कई बार परिस्थिति ऐसी आती है, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं क्या करूं? I don't know this situation. How do I handle this situation? ये परिस्थिति को मैं कैसे समाधान करूंगा, मुझे मालूम नहीं। But the Holy Spirit may give you an idea or a suggestion on what we must do next. तब पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, आपके अंदर वो समझाएगा। Especially if it's important decisions. Especially if it's important decisions for your life. आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण जब निर्णय को लेते हैं, Speak God's word. परमेश्वर के वचन को घोषणा करें। Declare God's word. परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। Do. Always maintain a clear conscience. दूसरी बात, हमेशा स्पष्ट विवेक बनाए रखे। Read 1 John 3:21 and पहला 22. यूहन्ना 3 अध्याय उसका 21 और 22 पद। Because
Our heart does not condemn us because we have a clear conscience. यदि मन में हमारे मन में कोई दोष हो तो क्या होगा, हमारा विवेक स्पष्ट नहीं होगा। The conscience is is the voice of the Spirit. और जो हमारा जो विवेक है परमेश्वर की आवाज है। This conscience is very important. और ये विवेक हमारे अंदर होना बहुत आवश्यक है। It should be free from guilt, shame and condemnation. और हमें हमारे दोष से और हम अपने आप को जो दोषित करते हैं उन बातों से हमें शुद्ध होना है या उसको अलग करना है। See, if we have a guilty conscience, अगर हमारे मन में दोषारोपण है या दोष हमारे अंदर महसूस करते हैं, then we cannot stand in front of God with confidence. हम बड़े किसी के सामने बड़े हियाव के साथ खड़े नहीं हो पाते। Remember the story of Ananias and Sapphira? हनन्याह सफीरा के बारे में आपको मालूम है? Ananias came and said, yeah, this is all the money that I'm giving you for the ministry. हनन्याह सफीरा ने क्या किया, ये पूरा जो रुपया पैसा है ये सब सेवकाई के लिए देना चाहते हैं। But I'm sure in his heart there was something, I'm not doing something right. लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा था कि मैंने कुछ गलती किया है। Even Judas, अब यहूदा के बारे में देखें, no, what I'm doing is wrong. मैं जो कुछ कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। And after Jesus was crucified, maybe he looked at it and he thought, what a mistake I've made. यीशु मसीह जब क्रूस पर पड़ा हुआ था तब उसने सोचा होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। Because of me, he is dying on the cross. मेरे कारण यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। He was so guilty that he took that money and he went back to the Pharisees to give it back to them. और उसने अपने आप पे इतना गलती को महसूस किया और वो गया और रुपये की थैली को उसने फेंक दिया। Now, sometimes we may feel a guilty conscience. कई बार हम अपने मन में अपने आप को दोषी ठहराते, दोष को महसूस करते हैं। Maybe we commit a sin. हो सकता है हमने कोई पाप की हो, गलती की हो, Then it's night time, we have to pray. और हम रात्रि में जब हम प्रार्थना करते हैं Then we feel, oh, I did this wrong. तब हम महसूस करते हैं कि मैंने गलती किया I है, sinned against God. मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। Mostly what we may end up doing is no need to pray. और कई बार ऐसा होता है, हमारे मन में आता है कि हम प्रार्थना नहीं करना चाहिए Because I have hurt God. क्योंकि मैंने परमेश्वर को क्या किया, चोट पहुंचाया। But the right thing to do is to know that God is a loving God. लेकिन इस बात को हमें सही रीति से करना चाहिए। He is faithful to forgive us. वो विश्वास योग्य, मुझसे प्रेम करता है, वो क्षमा करता So है। we must go back to God and say, God, this is a mistake that I made. हम परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर प्रभु से कहे, प्रभु मैंने ये पाप किए हैं, Please forgive my sins. कृपया कर मेरे इस पापों को क्षमा करिए। And your word says, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you. और वचन कहता है कि अगर तुम अपने अपराधों को मान लेते हैं, वो क्षमा करने में योग्य या सक्षम है। Ask for forgiveness हम क्षमा को मांगे and continue to walk with a clear conscience. और फिर से शुद्ध विवेक में, स्पष्ट विवेक में हम अपने आप को चलाए। We must be honest when we confess our sins. लेकिन जब हम अपने पापों को मानते हैं और हम ईमानदार बने, And if we are honest, we must believe that the blood of Jesus has washed away every sin. आप ईमानदार बनेंगे, आपके अंदर विश्वास आएगा कि यीशु मसीह का जो लहू मेरे पापों को And धोता है we are righteous in God's presence. और हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम धर्मी ठहराए जाते हैं, And we are a child of God. हम परमेश्वर के संतान ठहराए जाते हैं। Amen? आमीन। Right? In the natural, a father is training the son. Will he not take a stick and correct him? क्या एक पिता अपने बच्चे को जब शिक्षा देता है, क्या वो छड़ी उठाता है मारने के लिए, Yes. सिखाने के लिए? Yes. हाँ, If a child does wrong, does the father say, get out? क्या वो पिता, जो वो बच्चा जब गलती कर देता है तो पिता कहता है कि बाहर चले जाओ, निकल जाओ? The father is a loving father. पिता वो प्रेमी पिता है, He may correct him, वो उसके अंदर सुधार को लाता है, but he forgives him also. उसके साथ साथ उसे वो क्षमा भी करता है, Same way with भूल जाता है। our heavenly father. इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता। Okay, we'll take a break and we'll come back. हम ब्रेक लेंगे, फिर वापस मिलेंगे।